So we have Shivangi Guleria with us to share her interview experience, and she is an incoming SWE at Adobe. So hi Shivangi, Hi, uh, Chavi. great to have you with us today. So let's get started with your interview journey. So first, tell us something about yourself. I'm an electronics and communication student from Maharaja Surajamal Institute of Technology. And like, I have an average CGPA, not that great, but yeah. And I'm really interested in software, and yeah, that's it. Okay, so great to know that. So when did you start coding? Like when did you start programming and things like that? I had computer science in class 11 and 12. तो like मुझे basics आते थे तब से. But when I started engineering college and I had electronics and communication as my subject. So मैंने like 3 साल mainly core electronics पे ही ज़्यादा focus किया था. But later on I realized मुझे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे एम्बेडेड सिस्टम वगैरह में उसमें मुझे सॉफ्टवेयर पोर्शन ज्यादा इंटरेस्ट करता था रादर देन हार्डवेयर. तो मैंने फोर्थ ईयर में जाके बेसिकली ज्यादा अच्छे से प्रॉपर कोडिंग करना स्टार्ट की लाइक डीएस एंड एल्गो एक्सेट्रा. So what is your language? Like which language do you code? So I mostly prefer Python and C++. And like C++ में ज्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मोस्टली इंटरव्यूज में जैसे C++ या फिर जावा को फोकस दिया जाता है. बट आई एम लाइक कंफर्टेबल कोडिंग इन बोथ ऑफ दोस लैंग्वेज. Okay, so that's great. And please, like, how did you get an opportunity to interview at Adobe? सो अडोबी हमारे कैंपस में डायरेक्टली नहीं आती है. बट दे हैड दिस प्रोग्राम शी कोड्स फॉर लाइक फीमेल कोडर्स जिसके थ्रू फर्स्ट नौकरी के थ्रू इन्होंने हमारे कॉलेज में ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया था एंड उसके थ्रू रिक्रूटमेंट हुई थी. सो बेसिकली इसकी जो पहली नोटिफिकेशन जो आई थी प्लेसमेंट से ऐसे ही आई थी. इट वॉज ड्यूरिंग डिसम्बर लास्ट ईयर एंड जो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट हुए वो थे in the month of January and the interview was in the month of February. Okay, so February में सारा procedure शुरू हुआ, like coding test and all. Yeah, so mainly coding was like January, February. Okay, so like अब हम जाते हैं interview rounds की तरफ कि कितने rounds थे and क्या-क्या था rounds में. So broadly speaking, there were 3 rounds. First one was an aptitude test, basic logical thinking, etc. It was around 45 to an hour test, and after 2 weeks, coding test was conducted. It was a 30-minute test, and it had 2 questions. And उसके approximately उसमें जो shortlist हुए उसके approximately 2 weeks बाद फेस टू फेस इंटरव्यू था अडोबी ऑफिस में. एंड वहां पे बेसिकली 5 राउंड्स थे एट अडोबी ऑफिस. फर्स्ट वन वाज पेन एंड पेपर टेस्ट, 30 मिनट्स टेस्ट. एंड उसके बाद हमारे 3 फेस टू फेस इंटरव्यूज थे जो सारे एलिमिनेटिंग थे. एंड लास्ट में एक एचआर राउंड था. Okay, so like in all it was 7 rounds total. Yeah, या 6 to या 7 5 rounds. प्लस 2. यस. So that was a quite long interview process through Adobe. So यस यस. um, tell us about the domains that they were focusing on during the face-to-face and the technical interviews. So, if we come to the coding part, so the main topics that were asked were like arrays, basic arrays, strings, linear search, binary search, like basics of trees, and a little bit of recursion and backtracking, and hash maps. So these were the main domains related to coding part. And for the OS part, like questions like virtual memory or deadlock and segmentation paging, like question like these, basic questions. And there were riddles, puzzles basically. So puzzles पे उन्होंने काफी ज्यादा फोकस किया था. So basically Geek for Geek पे बहुत सारी puzzles अवेलेबल है तो मैंने उसी से प्रिपेयर किया था. तो that were enough. And जो उनका एक और जो बहुत ही important part था वो था testing questions. Like they were like
किसी भी चीज को आप टेस्ट करने के लिए वो पूछ सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप एक ऐप है, तो आप इसमें क्या क्या चीजें टेस्ट कर सकते हैं, क्या फीचर्स हैं जो टेस्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबल एज केसेस है जो हो सकते हैं इसमें अवेलेबल। सो ऑल पॉसिबल सिनेरियोज में आप जो भी चीजें आप बताना चाहते हो तो वो पूछ सकते हैं। एंड फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गैजेट पूछ सकते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच। तो स्मार्ट वॉच में ऐसी क्या चीजें हैं जो आप टेस्ट कर सकते हो। एंड फिर वो जैसे एब्स्ट्रैक्ट चीजें और बहुत ही बेसिक चीजें, लाइक फॉर एग्जाम्पल पूछेंगे पेन है, आप पेन में क्या टेस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली वो लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड तो प्रॉब्लम बेसिकली थॉट सॉल्विंग प्रोसेस एबिलिटी। पूछना चाह रहे थे, थॉट प्रोसेस पूछना चाह रहे या थे कि क्या है कैंडिडेट की। या सो या ओके, सो द सो नेक्स्ट या या टेल। सो बेसिकली जो इंटरव्यू राउंड था तो उसमें मैं एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ कि जो भी कोडिंग क्वेश्चंस थे या फिर पजल्स थी या जो भी था, तो वी वर गिवन ऑफ प्लेंटी ऑफ टाइम। तो मतलब बहुत ही पेशेंस था एंड दे वर वेरी चिल एंड जैसे आई टुक enough time to solve coding questions and they were also helping, like they asked कि आपने जो कोड लिखा है आप इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो उन्होंने साथ में हिंट्स भी दिए एंड ऐसे काफी इंटरैक्टिव था एंड काफी मतलब जस्ट वन साइडेड नहीं था कि जस्ट वो क्वेश्चंस पूछ और आंसर देना, बट इट वाज वेरी इंटरैक्टिव एंड काफी लाइक उन्होंने एटमॉस्फेयर था तो ज्यादा टेंशन वाला एटमॉस्फेयर नहीं तो था। लाइक तो हम जो सोचते हैं कि काफी डिफिकल्ट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। सो या एंड मतलब थोड़ी नर्वसनेस है बट काफी चिल एटमॉस्फेयर था बेसिकली। ओके, सो आई वुड वांट टू आस्क कि पेन पेपर राउंड में क्या था बेसिकली, क्योंकि हमने तो यूजुअली मैंने हम पेन पेपर टेस्ट देते नहीं है, तो फिर उसके बारे में बताइए। जो पेन एंड पेपर टेस्ट था उसमें हमारे स्टार्टिंग में 10 to 15 कोडिंग एमसीक्यू कोडिंग क्वेश्चंस थे। कोडिंग एंड ओएस रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो ओके। बेसिकली जैसे आउटपुट क्वेश्चंस या फिर बेसिक ओएस क्वेश्चंस। एंड देयर वर 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू एप्टीट्यूड, लाइक बार ग्राफ था या फिर बेसिक एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं। एंड उसके बाद दो क्वेश्चंस जो थे उनकी वेटेज लाइक 3 and 7 मार्क्स की थी एंड वो दो कोडिंग क्वेश्चन थे। तो लाइक हमें रिटर्न कोड लिखना था उसमें। तो वो जैसे बेसिक एरेज एंड स्ट्रिंग्स एंड मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। सो वाज इट अ सूडो कोड काइंड ऑफ थिंग और पूरा प्रोग्राम लिखना था उसमें? उसमें पूरा प्रोग्राम लिखना था बट लाइक लैंग्वेज आप कोई भी यूज कर सकते हो, रिलैक्सेशन थी तो फिर yeah. ओके, एंड लाइक वो क्या कंटिन्यू फॉरवर्ड हुआ नेक्स्ट राउंड में? लाइक इंटरव्यूअर ने पूछा क्या उसके बारे में? लाइक वो Uh, वो एलिमिनेटिंग राउंड नहीं था। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक्चुअली खुद बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था पेन एंड पेपर टेस्ट में, तो या देवर थोड़ा सा कंसर्न था। बट फिर मैंने बताया कि फॉर व्हाट रीजन मुझे लगा कि थोड़ा टाइम कम था, बट मैंने फिर उसको अपने इंटरव्यू राउंड में कंपनसेट कर दिया था। तो फिर लाइक ओके। या ओके, सो कमिंग ऑन टू द क्वेश्चंस, लाइक ओएस में आपने जैसे बोला कि लाइक सेगमेंटेशंस है, सो वेयर शुड द स्टूडेंट्स रेफर टू? एंड लाइक ईसी बैकग्राउंड से होने के बाद व्हाट प्रॉब्लम्स डिड यू फेस? तो लाइक मेरा कोई सिर्फ मेन सब्जेक्ट नहीं था ओएस एंड यू नो इस टाइप का। तो फिर मैंने बेसिकली गीक्स और गीक्स पे ओएस के क्वेश्चंस थे। मैंने लाइक पुराने इंटरव्यूज वगैरह देखे, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस वगैरह, तो उस पे जो ओएस क्वेश्चंस गिवन थे तो मैंने वो थोड़ा बहुत पढ़ा एंड यूट्यूब से वीडियोस रेफर की। बट एज अ स्टूडेंट मुझे इतना चीजें नहीं आता था ओएस, तो मतलब मैंने वो बेसिकली इंटरव्यू को बता दिया था एंड अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आता तो मैंने सीधा उसको बता दिया कि मुझे नहीं आता है। तो दे वर लाइक कूल विद दैट। एंड जो मुझे क्वेश्चन आता था, जो टॉपिक्स मुझे आते थे उस पर उन्होंने अच्छे से क्वेश्चंस पूछे। तो या अगर कुछ आपको नहीं आता तो आपको सीधा बता देना चाहिए। सो बेसिकली हमें बता देना चाहिए कि हमें ये आता है, ये नहीं आता, तो वो उसी से हाँ ट्राई करते हैं पूछने की। सो या राइट। उन्होंने मुझे लाइक हाँ। Okay, and tell us about some of your internships and the projects. How did they affect you in the interview rounds? So I do not have any internships in like software और computer science field. तो मैंने जो भी internship की हैं वो मेरी electronics related ही हैं। And मुझे इंटरव्यू में मैंने रिज्यूमे में नहीं था बट मैंने अपनी इंटर्नशिप लिखी थी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो मुझसे वही क्वेश्चन पूछा गया एंड मैंने उसके बारे में बता दिया। सो दैट वाज़ अ प्रॉब्लम। कमिंग टू द प्रोजेक्ट्स, मेरे लाइक कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के ही प्रोजेक्ट्स हैं
एंड जो मेरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं बहुत ही बिगनर लेवल एमएल प्रोजेक्ट्स, बहुत ही मतलब एक तो बेसिक बिगनर लेवल प्रोजेक्ट्स थे, तो मैंने वो अपने रिज्यूम में मेंशन किए हुए थे। एंड मुझसे उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए, बट लाइक मुझे वो आते थे एंड मैंने वो खुद बनाए थे प्रोजेक्ट्स, तो दैट वाजंट अ प्रॉब्लम एट ऑल। मतलब जो भी आपने रिज्यूम में लिखा है वो आपको एटलीस्ट आना चाहिए, वो कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप वाइज। सो बेसिकली जो बनाया है वो हैंड्स ऑन होना चाहिए एंड लाइक वो कुछ भी पूछ सकते हैं उसमें से, दे एक्सपेक्ट कि हाँ, सब आता हो उसमें से उसमें। कुछ भी कर सकते। हाँ, जो आपने लिखा है वो आपको आना चाहिए। ओके, एंड what are some of the tips that you would want to give the juniors or the audience कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, एंड लाइक आपने बहुत लेट शुरू किया फोर्थ ईयर में, सो उसके बाद कैसे प्रैक्टिस की, क्या किया? सो मतलब एज एन ईसी स्टूडेंट जिसमें लाइक मुझे लगता था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट तो मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, इंटरेस्ट चेंज होता है। तो एंड आई वाज वेरी लेट टू दिस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, एंड लाइक मुझे एक साल पहले नहीं पता था कि हैश मैप्स क्या होते हैं एंड बैक ट्रैकिंग क्या होती है एंड लाइक थिंग्स लाइक डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। एंड बट मैंने प्रैक्टिस की एंड इट्स नेवर टू लेट, लाइक मैंने फोर्थ ईयर में प्रैक्टिस की एंड मैंने ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो मैंने बहुत सारा रेफर किया एंड ऐसा फील होता था कि लाइक और कंप्यूटर साइंस एंड आईटी स्टूडेंट्स है और बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स है जो लाइक फर्स्ट ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड उनके साथ compete नहीं कर पाऊंगी, बट दैट्स नॉट ट्रू। प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड मैं ये टिप देना चाहूंगी कि अगर आपको जैसे ऑनलाइन कोर्स कोई ज्वाइन करना है तो आप वो कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन क्लास अटेंड करनी है, बट वो काफी हेल्पफुल होती है। बट इफ यू थिंक यू आर डिसिप्लिन इनफ, तो आप खुद से इंटरनेट पे सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो आप वो पढ़ के खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो। एंड फोर्थ ईयर में करो या फिर आप थर्ड ईयर में करो, पर प्रैक्टिस करो तो आपका हो जाएगा। ओके, सो लाइक प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, आई सी। या एंड कोई ऑनलाइन पोर्टल्स जहाँ आप कोडिंग प्रैक्टिस करते थे या फिर बच्चों को करनी चाहिए, कुछ सजेशंस? सो मेनली मैंने जो अपने इस इंटरव्यू के लिए जो मैंने फोकस किया था वो गीक्स था। उसमें मुझे पजल्स में काफी ज्यादा हेल्प मिली, क्योंकि उनमें इंटरव्यू में पजल्स पे काफी ज्यादा फोकस था एंड उसकी अगर आपने पजल सॉल्व कर ली तो मतलब आपको आइडिया भी लग जाएगा कैसे सॉल्व करनी है। प्लस कोडिंग क्वेश्चन ही मैंने उससे काफी सारे रेफर किए एंड ओएस भी। एंड प्लस मैंने कोडिंग निंजा के कोर्सेज देखे थे, ज्वाइन किए थे, तो मुझे उससे बेसिक आइडिया लग गया था कि क्या क्या टॉपिक्स हैं डीएस एल्गोरिदम इन सब में। एंड तो मैं अपने आप का एक वो शेड्यूल एंड प्लानिंग ठीक से कर पाई। ऑल्सो मैंने अभी लीड कोड मैंने बाद में स्टार्ट किया करना, बट फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे इंटरव्यू में बहुत सारे एरेज एंड स्ट्रिंग्स एंड इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो फिर लीड कोड में जैसे टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करो तो आई थिंक वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। यस एग्जैक्टली, मैं भी अपने चैनल पे लीड कोड ही सॉल्व करवाती हूँ, सो दैट इज वेरी हेल्पफुल। एंड लाइक क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस करो, हमने वही देखा शिवांगी की जर्नी में, शी स्टार्टेड लेट बट देन प्रैक्टिस वाज द की, एंड लाइक काफी अच्छी कंपनी मिली उसे। सो any doubts and queries, you can drop her to her LinkedIn profile. I'll be sharing the link in the description, or you can mail her about any queries or any doubt. She'll be happy to help you. And thank you for coming and sharing your interview experience. थैंक यू सभी। Bye bye.